Good evening, all of you. In the last lecture, we learned about the modern periodic table, structure of modern periodic table. In that periodic table, we learned that there are seven horizontal rows are there. That rows we call the period, and there is a 18 vertical columns are there. That 18 vertical columns we call them group. Now, in the because of that periods and groups, there is a box formation is there, and in upper side of that box there is a particular numbers, means serial number is given to the each elements. Now serially numbers are given. Now there is seven, from that seven rows and 18 verticals column. There is a downside. There is a bottom of the downside. There is a lanthanide series is there and actiside series is there. That's why there are 118 elements are present in that periodic table, and because of this, there is no new elements are now formed, because this whole periodic table is completely fulfilled. And from up to 92, there is a natural elements are there. From 93 to 118, that all the elements are man-made, means they are formed by man. Now the entire periodic table, that entire periodic table is divided into the four blocks. There is a S block is there, then P block is there, T block is there, and A block is there. Now, because of that block, that groups and groups are divided. In S block, which groups are come? In S block, there is a first and second group is come, and in P block, what is in a P block? There is a P block start from 13 to 18, means there is a 13 to 18 groups elements are present, and in D block there is a from 3 to 12 groups are present, and this A block is only useful for that lanthanide and actiside series. Now this structure is there for the modern periodic table. Now this in that P block, there is a one zigzag line is shown. All of you see, there is a one periodic table is there on the screen. There is a one zigzag line is there, and along that zigzag line there is a silicon is there, arsenic is there. These are the metallites, and which ones are in the zigzag line left side now? That is all are aluminum, gallium, tin is there. Now this one is in left side of that zigzag line, but in a right side of that zigzag line there is a non-metals are present: phosphorus, sulfur, oxygen, nitrogen. These ones are the non-metals are there. See there on the screen. See there in yellow. In yellow there is a Si, silicon is there, arsenic is there. These ones are the metallites are there, and aluminum, gallium is there. These are the metals are there, and non-metals are in a green. See there, oxygen is there, sulfur, phosphorus, chlorine is there, fluorine is there. This one are the non-metals are there. Means there is a three parts are become non-metals, and metallites is there. Now this one is a explanation for the periodic table. Now there is a electronic configuration is there. In next topic, see what is the electronic configuration means. The electrons are electrons are arranged in that particular manner, like in a first orbit. First orbit is belongs to K, the second is L, and the third is M, and last one is N. K, L, M, N. Now in K orbit, there is a 2 electrons are present. Then there is a K, L is there. There is a 8 electrons are present.
L is 8 electron, and in M there is a 18, and N is there 32 electrons capacity is there. Now these all things we know. What is a valence is also, valence is also different for the different elements. Now see what is the meaning of valency. In last lecture we learned that valency also. Valency means when the electronic configuration is there and how much electrons are present in the outermost shell of that elements, that is a valency there. Now there is a electronic configuration of sodium is 281, means atomic number of sodium is 11. That's why 281 means 281, the one electron is present in outermost orbit. Now one is the valency of that sodium. Understand all of you? Valency means, now there is atomic size also we learn, atomic radius is also learn. This increasing from left to right, and from left to right, that all things we learn in the last lecture. Today we are going to learn, the topic is their metallic and non-metallic character. Now what is the meaning of metallics and non-metallic character? First of all, see, it is the seen that the metallic elements like सोडियम मैग्नीशियम आर टूवर्ड द लेफ्ट साइड. देखो अभी आप पीरियोडिक टेबल देखो, आपका जो सोडियम और मैग्नीशियम रहेगा, sodium and magnesium means this 11 and 12, atomic number 11 and 12 you have to see. Sodium and magnesium are toward the left side. The non-metallic elements such as the sulfur, this one is a metallic elements है ये, और non-metallic देखो इधर है sulfur, chlorine, these are in the right side. Understand? Means the metallic elements are present in the left side of periodic table, and non-metallic elements are present in the right side of the periodic table. Now, which are the metallic and non-metallic? There is a metallics are there, sodium and magnesium, and the non-metallic is there, sulfur and chlorine is there toward the right. The metallite characters silicon lie between the two types. मतलब ये दोनों के बीच में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? येलो में वो क्या है? हम इसको मेटलाइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेटलाइट. This a similar pattern is shown also observed in the other periods. Now it is seen that zigzag lines separated the metals and non-metals in the periodic table. मतलब हमें ये मालूम पड़ता है कि जो zigzag line है उसका काम क्या है? Metals और non-metals को क्या करने का? अलग करने का. Now elements appear to have arranged in the such way the metals are left side of the line and non-metals are right side of the metal, and metallites along the border of line. Why this happen? मतलब ये क्यों ऐसा होता है कि metals left side में है, non-metal right side में है, और metallites along the मतलब metalite इसके साथ क्यों है? तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग इसका अभी we are going to learn this one. Now see the characteristic chemical properties of metals and non-metals. अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेटल्स का और नॉन मेटल का डिफरेंट है. इट इज अ सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड cation in them is the form from the metals. मतलब cations है ना, ये cations ये किससे फॉर्म होते हैं? मेटल से. और जो एनायन होता है वो फॉर्म किससे होता है? नॉन मेटल से. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ध्यान में रखो. Cations are formed because of the metals and anion is formed because of the non-metals. Now from this it is understand that the metal have tendency. अभी metals से क्यों cation form होता है? तो metal से cation form होने का because from the metals cations are formed because that metal have tendency to लूज इलेक्ट्रॉन. मतलब मेटल्स का टेंडेंसी क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का. फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, तो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ सोडियम इज देयर. अभी सोडियम देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज देयर. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज देयर? 281. ओके.
Now, how much electrons are present in outermost orbit? 1. Now, when that sodium is undergoes in chemical reaction with chlorine, क्लोरीन के साथ जब उसका केमिकल रिएक्शन होता है तब ये सोडियम, ये मेटल है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को देता है और वो खुद क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है. क्या बन जाता है, कैटायन. एंड सल्फर, sorry, chlorine, what is a chlorine is there, chlorine is a non-metal. Then chlorine, what do chlorine is there, chlorine का atomic number is there 17. What is the electronic configuration is there, 287. Means that chlorine want one electron to complete the octave. मतलब क्लोरीन को वो 1 इलेक्ट्रॉन्स उसको कम पड़ता है उसका ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लेता है और उससे वो अपना ऑक्टेव क्या करता है, कंप्लीट करता है. तो इसलिए जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल. दैट्स व्हाई द नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन. मतलब जो नॉन मेटल्स होता है उनका टेंडेंसी क्या रहता है, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल. दैट्स व्हाई दे फॉर्म द एनायन. मतलब उनमें कौन सा ये होता है, एनायन. वो क्या होते हैं, एनायन. एंड दे आल्सो बिकम द नोबल गैस. मतलब जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके आउटर मोस्ट शेल अभी कौन सा आ जाएगा, 8 वाला, 2 8. मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी complete. That's why he cannot take the participate in any types of the chemical reaction. Understand all of you? Now on the now here we have already seen that iron have the stable electronic configuration of noble gas. How is possible ability to lose the or accept electron in the valence shell determined? All the electrons in any items are held by the attractive force exerted on them by the positive charge nucleus. अभी आपको मालूम है जो भी है ना इलेक्ट्रॉन्स का जो ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स why the electrons are moved from one place to another place, because of from the nucleus there is so much attractive force is there, exerted force is there. The positive charge in between the valence शेल एंड न्यूक्लियस. मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये किधर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है उसके आजू बाजू में क्या होते हैं, वो मूव करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the nuclear charge. Thus the number of valence electron in metal is small. इसलिए अगर आप देखोगे तो मेटल्स जो भी रहेगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इधर तक ही नंबर्स रहेंगे. अंडरस्टैंड? मतलब वो लूज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी होगी, 1 से लेके 3 एलिमेंट तक ही. नहीं तो आप बोलोगे सर अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा एक पोटेशियम लेते तो पोटेशियम का 19 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 2 8 18 सा, मतलब 8 रहेगा, 2 8 8. तो उसका जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा क्या, तो नहीं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता है, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं उनका टेंडेंसी कितना होता है, फ्रॉम 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं, सिर्फ लूज करते, उससे ऊपर वो लूज करते नहीं है. Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electron is small. As combined effect of these two factors, metal have tendency to lose valence electron to form the cation, having the stable noble gas configuration. मतलब जब है ना ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं और वो एक क्या बन जाते हैं, कैटायन फॉर्म बन जाते हैं. This tendency of elements are called electropositive
इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। मतलब यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अगर आपको देखा जाएगा तो पीरियोडिक ट्रेंड, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड इन द एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स में डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, देन इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस किधर से होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। Now there is a periodic trend in the metallic character of element is clearly understood from their position is modern periodic table। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड के मेटेलिक कैरेक्टर का हमें अंडरस्टैंड, मतलब वो हमें उससे हम लोग को सब मालूम पड़ जाता है। Now let us consider the metallic character of the element belonging to the same group। मतलब वो let us first consider the metallic character of element belonging to the same group। For example, अगर हमने periodic table लिया तो उसमें सोडियम रहेगा, तो वो सोडियम is come in the first group, that's why you take the metallic character only from the first group। While going down the group a new shells get added। मतलब जैसे जैसे हम लोग अगर फर्स्ट इसमें आए, फर्स्ट इसमें वन एक ऑर्बिट था, सेकेंड इसमें गए तो सेकेंड ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट देयर इज अ न्यू शेल्स आर गेट एडेड। मतलब उसमें क्या हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे न्यू शेल्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, and resulting in an increasing in the distance between the nucleus and valency electron। मतलब उसमें क्या हो जाता है, जैसे जैसे न्यू शेल्स ऐड होते हैं तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइड्रोजन या बेरिलियम का ये करते हो एटॉमिक नंबर, तो उसमें क्या हो जाता है मालूम है क्या, उसमें दो एलिमेंट्स रहेंगे किसमें। अभी बोरॉन को देखो, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 5, तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, तो 2 और 3, तो वो जो 3 एलिमेंट्स है, और बाद में दूसरा कौन सा रहेगा, उसका ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो कार्बन का क्या रहेगा 2 4। तो जैसे जैसे हम उसको लेफ्ट टू राइट जाते तो उसमें न्यू शेल्स क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो वो जो ऐड होने का जो ये रहता है, उससे क्या हो जाता है, मैं इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एज वेल एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ते जाता है। दिस रिजल्ट इन द लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and thereby lowering attractive force on the valence electron। As a result of this tendency, the atom to lose the electron increase also pennulate shell become the outermost shell on losing valence electron। The pennulate shell is complete octave। मतलब जैसे ही कोई एक एलिमेंट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उससे दूसरा एलिमेंट्स क्या करता है, उसका आउटर मोस्ट शेल क्या करता है, कंप्लीट करता है, और वो क्या बन जाता है, एक फुल कंप्लीटली ऑक्टेव पोजीशन का एलिमेंट्स बन जाता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑन द लूजिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, the pennulate shells is complete octave, therefore the resulting cation has a metallic character on the atom। cation has a स्पेशल स्टेबिलिटी, इसलिए तो कैटायंस रहते हैं ना, उसको स्पेशल स्टेबिलिटी रहती है। अभी देखो मैग्नीशियम का भी, मैग्नीशियम भी है ना, क्या करता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 282। तो वो भी क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, इसको मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 6 बराबर। तो मैग्नीशियम के पास 2 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है बराबर। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, कैटायन हो गया बराबर। मैग्नीशियम कैटायन हो गया, और ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम कैटायन क्यों होता है, क्योंकि वो मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इज बिकम एनायन बिकॉज ऑक्सीजन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऑक्सीजन क्यों लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो अगर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रख के कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि उसका जो
ऑक्टेव वो है, वो सेकेंड ऑर्बिट में ही क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको क्या कर देता है, दूसरे इसको देता है, क्योंकि उसका मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक ही है मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब वो क्या कर देते हैं, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेकिन वो भी 1 से 3 नंबर तक ही, मतलब जब एटम जब आपके आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेके 3 तक, मतलब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। अगर 4-5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में रहेंगे तो आप उसको, मतलब उस वो मेटेलिक कैरेक्टर उसको वो लूज करता नहीं है, क्योंकि वो टेंडेंसी है नहीं, वो मतलब स्टेबिलिटी सिर्फ 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही सीमित है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्यों लेता है, ऑक्सीजन को क्या जरूरत थी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, तो ऑक्सीजन के पास जो आउटरमोस्ट शेल था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके उसको उसका ऑक्टेव कंप्लीट करना था, इसलिए उसने मैग्नीशियम से 2 ऑक्टेव लेने के, मतलब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो अपना ऑक्टेव करता है, कंप्लीट करता है, और उनसे एक नया आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी ये सब उनका टेंडेंसी क्या है, द मेटल, मतलब मेटल्स का टेंडेंसी है, द उसका स्टेबिलिटी है, मतलब कैटायंस जो होते हैं उनका स्पेशल स्टेबिलिटी है कि वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या मेटेलिक कैरेक्टर बन जाते, or lose electrons increase the further metallic character of an atom is the tendency to lose electron, therefore the metallic character of element increase while going down group। मतलब जैसे जैसे डाउन ग्रुप में जाते हैं, जो नीचे के ग्रुप्स में जाते हैं लेके, मतलब 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, तो वैसे वैसे उसका जो एलिमेंट्स क्या होते जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर अभी आप मैग्नीशियम का देख रहे हो तो मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर, 12, तो एल्यूमिनियम का 13, सल्फर का, सिलिकॉन का 14, 14, देन फॉस्फोरस 15, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट टू राइट, मतलब डाउन इंक्रीजिंग वाइल गोइंग डाउन साइड, मतलब जैसे जैसे डाउन साइड में जाते हैं वैसे वैसे वो ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर है ये क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड, द अभी हमने ग्रुप का देखा था, अभी पीरियड्स का देखते हैं। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द आउटर मोस्ट शेल रिमेन द सेम, मतलब जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऑब्वियसली 2 और 1, ऑब्वियसली। बाद में सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली 1 रहेगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब 281। मतलब जो पीरियड के हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं, तो वो जो पीरियड्स के हिसाब से जो भी है वो उसमें क्या हो जाता है, द आउटरमोस्ट शेल रिमेन सेम, मतलब उसमें सबके आउटरमोस्ट शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नाउ however the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, मतलब इसके कारण ही क्या होता रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस है ना वो क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, और जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है। Thus, the effective nuclear charge goes on increasing as a result of tendency of atom to lose the valence electron, while the decreasing with the greater and हो गया था greater, शायद। this is called the electronegativity।
मतलब उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। किसको? द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। मतलब इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर, therefore the valence electrons are held with a greater and greater attractive force। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किधर से होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर से हो जाती है, वो पीरियड, मतलब पीरियड वाइज हो जाती है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रुप वाइज हो जाती है। Understand all of you? Now the tendency of the elements to form anion or the electronegativity is the non-metallic of the elements। मतलब the tendency of elements to form anion और electronegativity in the non-metallic character। मतलब electronegativity किसमें हो जाती है, electronegativity सिर्फ non-metallic characters है ना, उसमें ही हो जाती है। Now there is a last one topic is remaining from this lesson, graduation in the halogen group। What is the meaning of halogen group? अभी देखो periodic table का halogen group कौन सा है, 17 ग्रुप्स देखो, उसमें कौन कौन से दिख रहे देखो, chlorine is there, fluorine is there, bromine is there, iodine is there। Okay, now these all are from the halogen group। और जो halogen group होता है ना, वो halogen group कभी भी आप लिखो देखो, F2 Cl2 Br2 मतलब Cl2, या ऐसे ही लिखते हैं। Thus the मतलब halogen group contain members of halogen family, all them have the general formula X2। मतलब उनका फॉर्मूला क्या है मालूम है, X2। X is for the elements name and 2 is carry। मतलब उसका जो 2 है ना, उसका फॉर्मूला ही वो, मतलब उसको फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, फ्लोरीन के Cl2। अभी कभी भी आपको क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन लगेगा तो Cl2 ही बोलते हैं हम लोग, वो, और वो 2 क्या करते हैं हम लोग, डाउन साइड में लिखते हैं। नाउ द chlorine is the are gases and bromine is liquid। So fluorine is F2 and chlorine is Cl2 are the gaseous and bromine is liquid while the iodine is a solid। मतलब ये सब क्या है, अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन वो क्या है, सब फ्रॉम, दे आर फ्रॉम द हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप में वो क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर कितना है, फ्लोरीन का अपना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, 2 7 रहेगा। और जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, तो 2 8 7 बराबर। तो ये मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने रहेंगे, every time their outermost shell there is a 7 electrons are present। Understand all of you? Sir, now lesson is finished, sir। Hello, hello, हाँ क्या हुआ, finish हुआ सर lesson। हो गया, ठीक है, होमवर्क दे दें और अपना नंबर व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ बच्चों को ना, ठीक है ठीक है।